Assalamu alaikum students. Hope you all are fine with the grace of Allah. Today we start our new chapter, chapter 5, solutions, acids, bases and salt. इस चैप्टर के अंदर हम इन चारों के बारे में पढ़ेंगे कि सॉल्यूशन क्या होते हैं, एसिड क्या हैं, बेसिस क्या हैं और सॉल्ट क्या हैं, इनके यूजेस, इनके फंक्शंस इन आवर लाइफ we all discuss in this chapter. This chapter belongs to a chemistry branch and the first topic of this chapter is solution. Solution in chemistry are homogeneous mixture of two or more substance. Solution क्या है? जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस आपस में मिलते हैं और आपस में ऐसे मिलते हैं कि वो होमोजीनियसली आपस में मिक्स हो जाते हैं. होमोजीनियसली मिक्स होने का मतलब क्या है कि वी कैन नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन these two substances in relative amount that can be varied continuously up to what is called the limit of solubility. लेकिन हम सॉल्यूशन बनाने के लिए जब दो सब्सटेंस को आपस में मिक्स करते हैं तो उनकी सॉल्युबिलिटी की एक लिमिट होती है. कैसे? एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट अपने घर पे आप परफॉर्म करें. टेक अ 1 glass of water and add 1 spoon sugar in it. Mix well. A solution of sugar and water made. Add 1 more spoon in it and mix it well. Maybe it is soluble as well. Add 1 more or 2 more spoon of sugar in it and mix well. It is mixed or not. You see that a few amount of sugar particles settle at the bottom of the glass. Why? The reason is that the limit of solubility of water is finished, so it can't be dissolved more sugar in it. The term solution is commonly applied to the liquid state of matter, but solution of a gases and solid are possible. मोस्टली हम जब सॉल्यूशन की बात करते हैं तो हम कहते हैं लिक्विड के साथ बनता है सॉल्यूशन, लेकिन देयर इज़ अ 9 वे टू मेक अ सॉल्यूशन. व्हेन वी मिक्स वाटर with solid it make a solution. When we mix gas in a liquid it make a solution, and your soft drinks are the mixture of gas and liquid. Okay, solid के आपस में मिलने से भी बनता है, वो कहलाता है अमलगम. ये आप 9th क्लास में ज़रूर पढ़ेंगे, 9 टाइप ऑफ सॉल्यूशन. यकीनन आपको सॉल्यूशन का टॉपिक समझ में आ गया होगा. एग्जाम्पल ऑफ एवरीडे लाइफ solutions. Number 1, coffee and tea. Coffee and tea are the solution of which thing? It is a solution of tea leaf, milk, water and sugar. And in coffee there is a solution of coffee beans, milk, cream and sugar. Sweet tea or coffee, when we add more sugar in a coffee or tea. Any juice, salt water, whenever you add salt in a water you make a salt water. Bleach is a commonly used substance for washing the cloth, and this is also are the solution of sodium hypochlorite dissolved in a water. Dishwater, liquid soap. Carbonate beverages,
Carbonate beverages is your soft drinks, where we add a carbon dioxide in a water. And the last thing is powdered drinks. Powdered drinks are those drinks which are made by any powder of juice. For solution, there are two substances are used. First one is solute and second one is solvent. Solute, the molecule that become suspended by solvent in a solution. वो सब्सटेंस जिसकी क्वांटिटी कम होती है और वो डिज़ोल्व हो जाता है सॉल्वेंट के अंदर, वो कहलाता है सॉल्यूट. Solvent, the material or a substance that dissolve the molecule of a solute into a solution. और solvent वो substance है जो अपने अंदर dissolve कर लेता है solute को. Solution is a mixture of solute and solvent. Definition of solubility. It's our next topic. Solubility is the ability of solid, liquid or gaseous chemical substances referred to as a solute to dissolve in a solvent. Solubility basically ability है किसी भी solid substance का या liquid substance या gas का कि वो उसके अंदर dissolve हो जाए. किसके अंदर? solvent के अंदर. Usually a liquid and form a solution. अगर हमारा सॉल्यूट ऐसा है जो सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हो ही नहीं सकता तो वो कैसे सॉल्युबल होगा. लिहाजा सॉल्युबिलिटी क्या है? एबिलिटी ऑफ अ सॉलिड विच इज गोज़ टू डिज़ोल्व इन अ सॉल्वेंट. जैसे सैंड पानी के अंदर डिज़ोल्व हो ही नहीं सकती, तो वो कैसे इसके अंदर डिज़ोल्व करें? उसको हम शेक तो कर सकते हैं, हम उसको मनी टाइम्स ट्राई कर सकते हैं. फॉर अ टाइम बिंग इट इज़ मैक्स, but after some time all of the sand particles settle down at the bottom of the glass, so it is quite impossible to dissolve the sand in a water. The solubility of a substance fundamentally depends on the solvent. इसके अलावा ये solubility not only depend on the solute, it also depend on the solvent. ये solvent पे depend कर रही है as well as the temperature and pressure, कि कितने टेम्परेचर में हम कितना अमाउंट किसी solvent के अंदर डिज़ोल्व करने जा रहे हैं. जैसे अगर हम 4 to 5 स्पून ऑफ शुगर डिज़ोल्व करने की कोशिश करें 1 ग्लास ऑफ वाटर के अंदर, तो क्या होगा? वो डिज़ोल्व नहीं होगा. लेकिन अगर हम उसको हीट प्रोवाइड कर दें तो ड्यू टू द टेम्परेचर इंक्रीज solubility is also increase and sugar particle can be dissolved in a 1 glass of water. तो इसका मतलब क्या हुआ कि टेम्परेचर और प्रेशर के चेंज होने की वजह से भी सॉल्वेंट की सॉल्युबिलिटी में फ़र्क आता है. It may be increase or it may be decrease. It depends on the nature of a solute and nature of the solvent. The solubility of a substance in a particular solvent is measured by the concentration of the saturated solution. किसी भी सब्सटेंस की solubility सॉल्वेंट के अंदर डिपेंड कर रही होती है डिसॉल्व करते हुए कि वो कितना उसका कंसंट्रेशन मौजूद है. यानी कि अगर हम सेचुरेटेड सोल्यूशन की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर सॉल्यूट की अच्छी खासी मिकदार मौजूद होगी, इतनी कि वो सॉल्वेंट की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर सके. A solution is considered saturated when adding additional solute no longer increase the concentration of the solution. यानी सैचुरेटेड सोल्यूशन वो सोल्यूशन कहलाता है जिसके अंदर उस स्पेसिफिक टेम्परेचर में मज़ीद सॉल्यूट डिज़ोल्व ना हो सके. यानी कि अगर हमने बात करी कि हम 1 गिलास पानी के अंदर 2 और 3, 4 स्पून शुगर को डिज़ोल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, तो जितनी मिकदार बग़ैर टेम्परेचर इंक्रीज़ करे उसके अंदर डिज़ोल्व हो रही है वो कहलाएगी उसकी सैचुरेटेड सोल्यूशन.
ऐसा सोल्यूशन जिसके अंदर मज़ीद और सॉल्यूट डिज़ोल्व ना हो सके वो कहलाता है उसका क्या चीज़, सैचुरेटेड सोल्यूशन। अब अगर हम बात करते हैं टाइप ऑफ सैचुरेशन की, यानी कि कितनी तरह की सैचुरेशन हो सकती है किसी भी एक सोल्यूशन को बनाते वक्त, तो देयर आर 3 काइंड्स ऑफ सैचुरेशन: सैचुरेटेड सोल्यूशन, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन एंड सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। यानी कि हम 3 तरह के सोल्यूशन बना सकते हैं: सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड। अब सैचुरेटेड सोल्यूशन अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि अ सोल्यूशन विद सॉल्यूट दैट डिसॉल्व अंटिल इट इज़ अनएबल टू डिसॉल्व एनी मोर, लीविंग द अनडिसॉल्विंग सब्सटेंस एट द बॉटम। यानी कि कोई भी सोल्यूशन बनाते वक्त अगर हमने सॉल्वेंट में सॉल्यूट की इतनी मिकदार डालें कि वो उसमें डिज़ोल्व होता रहे और उसकी कुछ मिकदार बहुत ज़्यादा स्टायरिन के बाद भी उस स्पेसिफिक टेम्परेचर में मज़ीद डिज़ोल्व ना हो, तो वो कहलाता है उसकी सैचुरेटेड कंडीशन, और वो सोल्यूशन कहलाता है सैचुरेटेड सोल्यूशन। मज़ीद उस टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन में सॉल्यूट अगर उसके अंदर डिज़ोल्व ना हो तो। द सेकेंड वन इज़ द अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, अ सोल्यूशन विद लेस सॉल्यूट दैन द सैचुरेटेड सोल्यूशन दैट कंप्लीट द डिज़ोल्व लीविंग नो रिमेनिंग सब्सटेंस। अगर हम 1 ग्लास ऑफ वाटर लेते हैं और उसमें ऐड करते हैं 1 स्पून ऑफ शुगर, आपने देखेंगे कि वो इजीली उसमें डिज़ोल्व हो जाएगा और कोई पार्टिकल भी हमको उसके बॉटम में रखा हुआ या बैठा हुआ नज़र नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास अभी मज़ीद कैपेसिटी है कि और सॉल्यूट डाला जाए तो वो उसको अपने अंदर डिज़ोल्व कर लेगा। ऐसे सॉल्यूशन को हम कहते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तीसरा है सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन, अ सोल्यूशन विद मोर सॉल्यूट दैन द सैचुरेटेड सोल्यूशन दैट कंटेन मोर अनडिसॉल्व्ड सॉल्यूट दैन द सैचुरेटेड सोल्यूशन बिकॉज ऑफ इट्स टेंडेंसी टू क्रिस्टलाइज एंड प्रेसिपिटेट। सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन हम कब बनाते हैं? जब हम चाहते हैं कि उस सब्सटेंस का हम क्रिस्टल बना सकें। अगर हमने सोल्यूशन बनाया फुल सैचुरेटेड तो उसके अंदर क्या होता है कि थोड़े बहुत उसके नीचे पार्टिकल्स बैठे हुए होते हैं। अगर हमें उसे सुपर सैचुरेटेड करना है, वी ऐड 2 और मोर स्पून ऑफ शुगर इनटू आवर सोल्यूशन, तो क्या होगा, वो अपने अंदर डिज़ोल्व नहीं कर पाएगा और वो हमको इस नीचे बॉटम पे बैठा हुआ नज़र आएगा। लेकिन अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें फॉर टेम्परेरी तौर पर वो उसके अंदर डिज़ोल्व हो भी जाएगा। ऐसे सोल्यूशन को जिसमें सॉल्यूट की मिकदार बहुत ज़्यादा हो, इतनी कि वो अनडिज़ोल्व हो जाए, ऐसे सोल्यूशन को हम कहते हैं सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। Our new topic is crystal. A crystal is a solid substance that has a definite geometric shape. आपके इर्द गिर्द बहुत से ऐसे सॉलिड सब्सटेंस मौजूद हैं जिनकी कोई ना कोई ज्योमेट्रिकल शेप होती है। रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, ट्रायंगुलर, हेक्सागोन, पेंटागोन, बहुत सी शेप्स आपने पढ़ी हुई हैं। आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा है मौजूद सॉलिड? चलिए मज़ीद आगे पढ़ते हैं, आपको याद आ जाएगा। A crystal has fixed angles between its faces and the faces have sharply defined edges. क्रिस्टल हर उस सब्सटेंस को कहते हैं जिसके फेसेस हों और उसके जो कॉर्नर्स हों यानी कि एजेस हों वो बहुत शार्प हों। अब आया आपके जहन में? जी, शुगर का जो पार्टिकल आप एक हाथ में लेकर देखें, उसके आपको फेसेस यानी कि साइड्स भी नज़र आएंगे और उसके आपको एजेस भी शार्पली महसूस होंगे। When crystal of solute are formed in a solution, the process is called crystallization.
क्रिस्टलाइजेशन वो फिनोमेना है जिसके ज़रिए हम हासिल करते हैं अपना क्रिस्टल। इसको बनाने का तरीक़ेकार कुछ ये होता है कि हम किसी भी सब्सटेंस का जिसका हमें क्रिस्टल चाहिए, हम खूब सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाएंगे और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन को बनाने के बाद उसको अगर हम हीट प्रोवाइड करेंगे तो सारा सॉल्वेंट एवापोरेट हो जाने के बाद हमें उसके क्रिस्टल मिल जाएंगे। और आप क्रिस्टल की शेप वाज़े तौर पर जहन में रखिएगा, इट शुड हैव अ एजेस एंड इट शुड हैव अ फेसेस। ओके, next topic from your book is rock salt crystal from the salt range। रॉक सॉल्ट किसे कहते हैं? सोडियम क्लोराइड क्या है ये वो सॉल्ट है जो आपके घरों में मौजूद है, जिसके बगैर खाने में मज़ा नहीं आता। वो क्या है? सोडियम क्लोराइड। Rock salt sodium chloride is one of the most useful mineral in the service of mankind। ये हमारे बहुत सारे कामों में आता है, सिर्फ खाना पकाने के काम में नहीं आता। Sodium chloride is not only used in cooking and in preserving food, but it is starting material for the production of many important industrial। सोडियम क्लोराइड ना सिर्फ हम अपने खाने में यूज़ करते हैं जिसकी वजह से हमारे खानों में टेस्ट आता है, ये फूड प्रिजर्वेशन यानी कि फूड को सेव करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। आप लोगों ने बहुत से सॉल्टी फूड प्रोडक्ट, फ्रोज़न प्रोडक्ट देखे हुए होंगे ना, वो कैसे हैं? उसमें जो सॉल्ट लगाया जाता है वो बेसिकली उसको प्रिजर्व करने के लिए लगाया जाता है ताकि उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ सके। लेकिन और भी बहुत से इंडस्ट्रीज़ के बहुत से रिएक्शन, बहुत से प्रोडक्शन करने के लिए भी ये मिनरल, ये सॉल्ट, रॉक सॉल्ट कौन सा वाला? सोडियम क्लोराइड इस्तेमाल में लाया जाता है। पाकिस्तान हैज़ द सेकेंड बिगेस्ट रॉक सॉल्ट माइन इन द वर्ल्ड इन द सॉल्ट रेंज। पाकिस्तान की अगर हम सॉल्ट रेंज की माइन की बात करते हैं तो दुनिया के सेकंड नंबर पर हमारे पास ये माइन मौजूद है। इस माइन को हम कहते हैं हैलेट। द रॉक सॉल्ट मिनरल नोन एज द हैलेट इज़ इन द फॉर्म ऑफ ग्लास लाइक ह्यूज क्रिस्टल। अगर कभी आपका वहाँ जाके विज़िट करना हो तो आप देखेंगे या कभी कोई आप डॉक्यूमेंट्री देखिएगा, उसके अंदर आप देखेंगे कि माइंस के अंदर बड़े बड़े गिलास नुमासी क्रिस्टल लटके हुए होते हैं। उन क्रिस्टल को वहाँ से निकाल कर लाया जाता है और प्यूरिफाई करके हमारे घरों तक पहुँचाया जाता है। The salt mine at Kevara covered the largest area of the salt mine in the world। जगह पे और सबसे बड़ी माइन जो कि केवड़ा के मुकाम पर मौजूद है, वो यहाँ से सॉल्ट निकाला जाता है और प्यूरिफाई करके मार्केट में लाया जाता है ताकि हम इसको अपने इस्तेमाल में ला सकें। जब माइन से निकाला जाता है तो वो कहलाता है रॉक सॉल्ट, और जब उसको हम प्यूरिफाई कर लेते हैं तो वो कहलाता है सोडियम क्लोराइड। अब हाउ वी प्यूरिफाई द सोडियम क्लोराइड फ्रॉम द रॉक सॉल्ट? इट इज़ 5 स्टेप प्रोसेस। नंबर 1, क्रश द रॉक सॉल्ट टू अ फाइन पाउडर। जो भी हमको रॉक सॉल्ट के बड़े बड़े पीसेस मिलते हैं उसको क्रश किया जाता है और उसको फाइन पाउडर बना लिया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? वो इसलिए किया जाता है कि माइन से निकल रहा है ना ये सॉल्ट रॉक से, तो यकीनन इसके अंदर कुछ ना कुछ सैंड पार्टिकल की इम्प्योरिटीज़ मौजूद होंगी। उसको रिमूव करने के लिए ये 5 स्टेप किए जाते हैं और सबसे पहला स्टेप इसमें यह है कि उसको क्रश करके फाइन पाउडर बनाया जाता है।
सेकेंड वन, डिज़ोल्व एंड कंसनट्रेट द सोल्यूशन। अब हम क्या करते हैं कि हम जितना भी पाउडर बना उसको एक कंसनट्रेटेड यानी कि सैचुरेटेड सोल्यूशन बना लेते हैं और अच्छी तरीके से उसको पानी में डिज़ोल्व कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता है सॉल्ट पानी में डिज़ोल्व हो जाता है जबकि इसके ऊपर मौजूद इम्प्योरिटीज़ यानी कि सैंड पार्टिकल वगैरह वो सेटल डाउन हो जाएंगी, डिज़ोल्व नहीं होंगी। देन उसके बाद उसको फ़िल्टर किया जाता है। फ़िल्टर के प्रोसेस में क्या होता है, जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस होते हैं वो सेपरेट आउट हो जाते हैं फिल्टर पेपर के थ्रू। देन क्या जाता है, उसको क्रिस्टलाइजेशन के लिए एवापोरेशन का प्रोसेस करा जाता है, उसको कुछ दिनों के लिए खुला छोड़ दिया जाता है ताकि उसके अंदर मौजूद वाटर वेपर्स रिमूव हो जाएं। उसके बाद जब वो क्रिस्टल हमें मिल जाते हैं क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस के तहत, उसको सेपरेट और प्यूरिफाइड सोडियम क्लोराइड की शक्ल में देते हैं और फिर उसकी पैकिंग करके मार्केट में पहुंचा दिया जाता है। ये 5 स्टेप हर उस रॉक सॉल्ट के साथ किए जाते हैं जो माइन से निकाला जाता है। और हमारे घरों में जो सॉल्ट आता है आप देखते हैं वो कितना प्यूरिफाई होता है, बिल्कुल सफ़ेद कलर का फाइन ग्रेनुलेटेड पाउडर की शक्ल में। अब आपकी बुक में जो न्यू टॉपिक है वो है कंडक्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी थ्रू सॉल्यूशन। जब कभी भी किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस को यानी कि सॉल्ट को पानी के अंदर डिज़ोल्व करते हैं तो उसके अंदर से करंट पास होता है और इस करंट पास होने वाले फिनोमिना को कहते हैं हम इलेक्ट्रोलिसिस। अब कुछ सब्सटेंस जो अपने अंदर से करंट गुजरने देते हैं वो कहलाते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स, और जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी गुजरने नहीं देते वो कहलाते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। यहाँ पे मैं आपको डिफ्रेंशिएट कर रही हूँ इलेक्ट्रोलाइट्स और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में। Electrolytes are the chemical compound that can break down into the ion when dissolved in water, while non-electrolytes are the chemical compound those aqueous solution cannot conduct electricity through the solution। यानी कि इलेक्ट्रोलाइट भी पानी में डिज़ोल्व हो जाते हैं और नॉन इलेक्ट्रोलाइट भी पानी में डिज़ोल्व हो सकते हैं, और उनके डिज़ोल्व होने के बाद अगर उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है तो वो कहलाएंगे इलेक्ट्रोलाइट्स, और अगर उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती तो वो कहलाते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। Electrolytes can conduct electricity through their aqueous solution। Aqua means water, तो aqueous solution means पानी में बना हुआ solution की बात की जा रही है। ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जो पानी में डिज़ोल्व होने के बाद इलेक्ट्रिसिटी पास होने दें वो कहलाते हैं इलेक्ट्रोलाइट। और Those cannot conduct electricity through their aqueous solution, और वो ऐसे सब्सटेंस जो aqueous solution तो बना लेते हैं लेकिन अपने अंदर से करंट पास नहीं होने दें, इसको कहते हैं हम नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। इन दोनों में बेसिकली फ़र्क होता है उनकी बॉन्डिंग का। इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर जो बॉन्ड मौजूद होता है उसको कहा जाता है आयोनिक बॉन्ड, जबकि नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर जो बॉन्ड मौजूद होता है उसे कहते हैं हम कोवेलेंट बॉन्ड। वो बॉन्ड जो कि आयन प्रोडक्शन की वजह से बनता है वो कहलाता है आयोनिक बॉन्ड, और वो जो कोवेलेंट बॉन्ड अपने अंदर म्यूचुअल शेयरिंग की वजह से बॉन्ड बनाते हैं वो अपने अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होने देते। इंक्लूड एसिड, बेस एंड सॉल्ट, यानी कि सारे एसिड, सारे बेसिस और सारे सॉल्ट्स किस में आ रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स में। और इंक्लूडिंग
कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, फैट एंड शुगर। आपके शुगर के सोल्यूशन के अंदर से करंट पास नहीं हो सकता, जबकि आपके सॉल्ट के सोल्यूशन से करंट पास हो सकता है। वजह सिर्फ यही है कि सॉल्ट आयोनिक कंपाउंड है और शुगर कोवेलेंट कंपाउंड है। It can be found as a strong electrolytes and weak electrolytes। अब बाज़ बार ऐसा होता है, कुछ ऐसे सब्सटेंस है जिसमें बहुत तेज़ी से करंट पास हो जाता है, उनको कहते हैं हम गुड और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, और कुछ ऐसे होते हैं जो कम मिकदार में अपने अंदर से करंट को पास होने देते हैं, उनको हम कहते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। जबकि नॉन electrolytic substance cannot be found as a water soluble compound and a water insoluble compound। जबकि अगर हम नॉन इलेक्ट्रोलाइट को देखें तो उनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो पानी में डिज़ोल्व हो जाते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो पानी में डिज़ोल्व नहीं होते। इस तरीके से आपको कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। अब न्यू टॉपिक है आपका एसिड। द वर्ड एसिड कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड एसिडियस विच मीन्स सोर। इस लैटिन वर्ड से जनरेट हुआ है, उसका नाम एसिडियस है, जिसके मायने हैं सोर यानी कि खट्टा। और एसिड के सब्सटेंस मोस्टली खट्टे ही होते हैं। This distinguishable property helps to identify the acid from other compound such as salt and bases। अगर हमें जब कभी भी खाने पीने की 3-4 चीज़ें सामने रखी हों और हमें आइडेंटिफाई करना हो कि इसमें से एसिड किस में है, बेस किस में है और सॉल्ट किस में है, तो हम आराम से टेस्ट के बेस पे बता सकते हैं कि जो सॉर है यानी खट्टा है वो एसिड है। Many acid can be hazardous if ingested and shouldn't be tasted। लेकिन कुछ एसिड इतने ख़तरनाक होते हैं, इतने hazardous होते हैं कि अगर हमने उसे खाया तो वो हमारे अंदर नुकसान पैदा कर सकते हैं, हमारे मसल्स को डैमेज कर सकते हैं। Once the acid bind to the base, it become a neutral substance। और एसिड की एक खूबी है कि जब कभी भी इसका रिएक्शन करवाया जाता है बेस के साथ तो एक न्यूट्रल सब्सटेंस हमारे सामने आता है। Often this reaction can lead to the वाटर एंड सॉल्ट। और ये रिएक्शन की वजह से जो हमें एंड प्रोडक्ट मिलता है, कौन से रिएक्शन, जब कभी भी एसिड रिएक्ट विद बेस इट प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। और सॉल्ट एंड वाटर की प्रोडक्शन की वजह से वो एसिड न्यूट्रलाइज हो जाता है। This is often seen when strong acid react with strong bases। ये कब होता है सॉल्ट और वाटर बनने का प्रोसेस, जब कभी भी स्ट्रॉन्ग एसिड का आप स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन करवाते हैं। आप लोग 9th में आएंगे तो टाइट्रेशन और न्यूट्रलाइजेशन के प्रोसेस के तहत ये फिनोमेना आप बाकायदा देखेंगे। अब कुछ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में आपको मैं बता रही हूँ कि एसिड की कुछ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं जिसकी वजह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं और डिस्टिंग्विश कर सकते हैं दूसरे सब्सटेंस के साथ। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज़ द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड आर इलेक्ट्रोलाइट्स, मीनिंग दैट दे कंडक्ट इलेक्ट्रिकल करंट। एसिड की सबसे पहली पहचान फिज़िकली ये है कि जब कभी भी उसका एक्वस सॉल्यूशन यानी कि पानी में डिसॉल्व करके सॉल्यूशन बनाएं तो उसके अंदर से करंट पास हो जाता है। और एसिड में का जो टेस्ट है वो कैसा होता है, सॉर यानी कि खट्टा। एसिड चेंज द कलर ऑफ सर्टेन एसिड बेस इंडिकेट्स।
इंडिकेटर्स कुछ ऐसे होते हैं जिसमें अगर हम एसिड में ऐड करते हैं तो एसिड अपना कलर चेंज कर लेता है। एसिड रिएक्ट विद एक्टिव मेटल्स टू यील्ड हाइड्रोजन गैस। एसिड जब कभी भी मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या प्रोड्यूस करता है? हाइड्रोजन गैस। Whenever acid react with a base to produce salt compound and water, कभी भी एसिड का रिएक्शन बेस के साथ होता है तो ये प्रोड्यूस करता है सॉल्ट एंड वाटर। अब कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में आपको मैं बता रही हूँ। जो फिज़िकल प्रॉपर्टी के अंदर लास्ट 2 हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी वो बेसिकली केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। वो क्या थी? एसिड रिएक्ट विद रिएक्टिव मेटल। जब कभी भी एसिड का रिएक्शन हो किसके साथ? मेटल के साथ, तो वो क्या प्रोड्यूस करता है? हाइड्रोजन गैस। यही पढ़ा था ना। एसिड रिएक्ट विद मेटल, इट प्रोड्यूस सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। जैसे कि अगर हम कॉपर और सिल्वर की बात करें तो ये रिएक्शन नहीं देते किसके साथ? डाइल्यूट एसिड के साथ। डाइल्यूट एसिड किसे कहते हैं? डाइल्यूट एसिड उसको कहते हैं जिसकी कंसंट्रेशन थोड़ी कम हो, वो थोड़ा सा हज़ार्डियस भी कम होता है। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन अमूमन हम लैब में यूज़ करते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए आप देखें कि इन्होंने दिखाया है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मैग्नीशियम के साथ जब कभी भी रिएक्शन करवाया जाएगा तो सॉल्ट बनेगा। कौन सा सॉल्ट? मैग्नीशियम क्लोराइड। और साथ में रिलीज होगी हाइड्रोजन गैस। ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टी के लिए उसकी केमिकल इक्वेशन को भी याद रखना ज़रूरी होता है। अब आपको एसिड की दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में बता रहे हैं। एसिड रिएक्ट विद बेस। जब कभी भी एसिड का बेस के साथ रिएक्शन करा जाएगा, यानी कि एसिड रिएक्ट विद बेस, इट प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। एग्जाम्पल यहाँ पर 2 इक्वेशन में दी गई हैं कि ये नाइट्रिक एसिड का फार्मूला है। जब कभी भी नाइट्रिक एसिड को फेरिक ऑक्साइड जो कि बेस है साथ रिएक्शन करवाया जाएगा तो हमको आयरन नाइट्रेट नाम का सॉल्ट मिलेगा और वाटर यानी कि H2O भी मिलेगा। अगर इथेनोइक एसिड का पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बेस के साथ रिएक्शन करवाया जाएगा तो पोटेशियम एथोनेट सॉल्ट मिलेगा और साथ में हमको मिलेगा वाटर। यानी कि जब कभी भी एसिड का रिएक्शन बेस के साथ होता है तो एंड प्रोडक्ट मिलता है हमको सॉल्ट एंड वाटर। नाउ इट इज़ द थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ acid is whenever acid react with carbonate, यानी ऐसे सब्सटेंस जिसके साथ कार्बोनेट आयन लगा हुआ हो वो बनाते हैं क्या? सॉल्ट एंड वाटर के साथ कार्बन डाइऑक्साइड। क्या मतलब कि whenever acid react with a substance which containing a carbonate, it produce salt, water as well as carbon dioxide। यानी कि ये देखें इक्वेशन में आपको बताया जा रहा है सल्फ्यूरिक एसिड का कॉपर कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाया गया तो सॉल्ट क्या मिला? कॉपर सल्फेट, वाटर H2O और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 मिला। इसकी प्रेजेंस चेक करने के लिए हमें पता है कि जब कभी भी लाइम वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड डाली जाती है वैसे तो वो ट्रांसपेरेंट होता है लाइम वाटर, लेकिन जब कार्बन डाइऑक्साइड उसके अंदर जाती है तो वो टर्न हो जाता है मिल्की, यानी कि जिस तरह दूध का कलर होता है ना सफ़ेद, वैसे पहले कैसा होता है? ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट लाइम वाटर कन्वर्ट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के मिलने से मिल्की सॉल्यूशन में।